باتیں کرو لوگوں سے، درخواست کرو ان سے۔ مہر والا کر دیا۔ محمد اسلم کتور ان کی جانب سے 2 مسلح ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ یہاں پر موجود یوسف تمبولی، وہ اپنی پوری پاکٹ منی عیدی جی ہوئے وہ پوری انشاءاللہ مرکز کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہتے ہیں جذبات کر لیں گے انشاءاللہ۔ خمس طیب۔ ہمارے دوست محمد عثمان صاحب، ان کی طرف سے 5 مسلح آئے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دیں۔ ہماری ایک بہن ہے فاطمہ سسٹر، ہمت نگر سے مستقل جب سے کام اسٹارٹ ہوا ہے ایک مسلح بیچتی رہتی ہیں، آج پھر انہوں نے آن لائن ایک مسلح دیا ہے، اللہ ان کی ساری جائز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، یہ ایسا نام ہے جس سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے۔ حضرت کی شخصیت علم و عمل کا سمندر اور تقوی کا پہاڑ، اور آپ کی شخصیت صاف اور شفاف، اور آپ کی فکر و نظر ایسی فکر و نظر ہے کہ جس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے پر فتن زمانے کے اندر امت کی فکر کرنے والے، بلکہ امت کی فکر میں کوڑنے والے، اور امت کے خاطر راتوں کو جھاگنے والے، اور امت کو بیدار کرنے کے لیے اور امت کو جگانے کے لیے کوشش کرنے والی واحد شخصیت ہے جو امت کی فکر کر رہی ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو دینی شخصیات ہوتی ہے، یا تو وہ زمین کے نیچے کی باتیں بیان کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت مولانا کی وہ شخصیت ہے جو زمین کے اوپر زندہ انسانوں کی فکر کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر جو مسلمانوں کی حالت بنتی جا رہی ہے اس سے بہت زیادہ واقف اور امت کو واقف کرانے کے اثر میں لگے ہو۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ ایک فاؤنڈیشن چلاتے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے، جس کے اندر بغیر کسی مذہب و ملت کے اختلاف کے سب کی فکر کی جاتی ہے، اور سب کی خدمت کی جاتی ہے، اور سب کو اس سے جو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن کتنا بڑا کام کر رہا ہے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر، آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے سن 1990 میں لکھنؤ کے قریب جہانگیر آباد کی جامع مسجد سے رحمان فاؤنڈیشن کا آغاز کیا۔ سن 1995 میں اس کا باقاعدہ رجسٹریشن ہوا۔ سن 2007 میں جب مولانا سجاد نعمانی نے ممبئی سے متصل نیرل میں اپنی خانقاہ قائم کی تو رحمان فاؤنڈیشن کا دفتر بھی نیرل منتقل ہو گیا، اور یہیں سے اس کے کاموں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ مولانا کی سرپرستی میں اس ادارے نے تقریباً ہر اس میدان میں اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں جس کی امت ہی کو نہیں انسانیت کو بھی سخت اہم ضرورت مسلم نوجوانوں کو تعلیم کے حقیقی مقصد سے روشناس کرانا تھا۔ چنانچہ مدرسہ دار ارقم جہانگیر آباد، معہد الامام ولی اللہ دہلوی، مدرسۃ الامام محمد قاسم نانوتوی اور دارالعلوم امام ربانی جیسے ادارے مارد وجود میں آئے۔ ان اداروں نے انتہائی کم وقت میں اپنے معیار کی وجہ سے علمی دنیا میں منفرد شناخت قائم کی۔ خانقاہ نعمانیہ مجددیہ کی صورت نیرل میں ایک دینی و روحانی مرکز کا قیام بھی امت کی تربیت ہی کی غرض سے کیا گیا۔ اسی طرح نعمانی پبلک اسکول اور نعمانی انسٹیٹیوٹ فار گرلز کے علاوہ رحمان فاؤنڈیشن نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپس کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ کمزور گھرانوں پر بیماری کا علاج خود بیماری سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن نے فائنینشلی ویکر سیکشن کے لیے افورڈیبل میڈیکل سروسز کا مشن جاری کیا۔ فی الوقت ملک کے مختلف شہروں میں فاؤنڈیشن کے تحت تمام تر طبی سہولیات سے لیس 3 ہاسپٹلز، 15 کلینکس اور کئی ڈائگنوسٹک سینٹرز جاری ہیں۔ ان تمام مراکز پر انتہائی رعایتی فیس پر علاج کیا جاتا ہے۔ اپنے طبی کاموں کو منظم کرنے کے لیے رحمان فاؤنڈیشن نے نرسنگ کورس بھی جاری کیا ہے جو بہت کامیابی سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے رفاہی کام بھی بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف آفات کی وجہ سے منہدم ہونے والے گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنا اور مخدوش گھروں کی مرمت کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ فلڈ ریلیف اور ایمرجنسی ایڈ کا بھی ایک شعبہ کسی بھی ہنگامی وقت کے لیے تیار رہتا ہے۔ بیوہ اور بے سہارا خواتین کے لیے ہر ماہ ویڈو پینشن دی جاتی ہے۔ بہت سے گھروں میں خاموشی سے راشن کٹ پہنچائی جاتی ہے۔ معذوروں کے لیے بھی ہر ممکن امداد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
मौसम की सख्ती से बचाने के लिए गरीबों में कंबल और स्वेटर तकसीम किए जाते हैं। औरतों को खुद कफील बनाने की कोशिशें भी की जाती हैं और शादी ब्याह के मौके पर उनकी मदद भी की जाती है। साथ ही फैमिली काउंसलिंग का एहतमाम किया जाता है, जिसके लिए दारुल क़दा भी कायम किए गए हैं। इस्लामी माहौल में जदीद लवाजमात के साथ प्ले स्कूल जारी किए गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की मजहबी तरबियत के लिए बहुत से मकातिब कायम किए गए हैं। शख्सियत साजी के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं। इसी तरह सरकारी स्कीमों और स्कॉलरशिप्स के बारे में बेदारी के लिए प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाते हैं। कमज़ोर तलबा के लिए रेमेडियल क्लासेस चलाई जाती हैं, जिसके खातिर खा नताइज सामने आए हैं। फाउंडेशन का यह मिशन नैरल की खानकाह से निकलकर मुल्क भर में फैल चुका है। मुल्क की 5 रियासतों के 20 शहरों में इसकी शाखें कायम हैं और नई शाखों का इजाफा भी होता जा रहा है। लाखों अफराद इससे फैज़ पाते हैं और अपने रफाही कामों में रहमान फाउंडेशन किसी किस्म का भेदभाव नहीं बरतता, बल्कि हर ज़रूरतमंद की बिला इम्तियाज़ इमदाद को अपना नस्बुल आइन समझता है। रहमान फाउंडेशन के इस मिशन को अपने डोनेशन से मजबूत करें। तो सामीन, आपने देखा कि रहमान फाउंडेशन कितना बड़ा काम कर रहा है, कितने शोबों पर काम कर रहा है, किन किन मकामात पर काम कर रहा है। तो इतने बड़े शोबे को चलाने के लिए, इतने बड़े फाउंडेशन को चलाने के लिए एक मरकज़ की ज़रूरत है। और मरकज़ की कितनी अहमियत है, मरकज़ कितना ज़रूरी है, तो उसकी अहमियत को हज़रत मौलाना ने 27वीं शब में अपने बयान में इसकी वजाहत फरमाई। आप वो बयान डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि मरकज़ कितनी बड़ी ज़रूरत है। हज़रत मौलाना एक बहुत बड़ा मरकज़ कायम करने जा रहे हैं। कितना बड़ा मरकज़ है, आप वीडियो के अंदर। रहमान फाउंडेशन ने मस्जिद नबवी के मॉडल को सामने रखते हुए एक मुकम्मल मस्जिद बनाम मरकज़ अल खलील की तामीर का आगाज़ किया। इस मिसाली मस्जिद में जहाँ 6700 मुसल्लियान नमाज अदा कर सकेंगे, वहीं इसमें मस्तूरात के लिए नमाज का इंतज़ाम, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट सेंटर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, एम्पी थिएटर, इंटरफेथ डायलॉग सेंटर, जिम्नासियम और प्ले ग्राउंड जैसी सहूलियात भी होंगी। तो हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब इतना बड़ा मरकज़ बनाने जा रहे हैं और आपका ख्वाब है कि मरकज़ बनेगा और उससे वो सारे काम होंगे जो मस्जिद नबवी से काम होते थे। और इसके खातिर एक बहुत बड़ी जो है तश्कील रात को बेलगाम की मस्जिद के अंदर हुई और लोगों ने किस तरीके से दिल खोल कर जो है न ताउन किया हज़रत मौलाना का। तो वो उनके बयान के अंदर से वो तो एडिट कर दिया गया है, उस हिस्से को निकाल दिया गया है, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है। मैं आपको मुख्तसर करो लोगों से, दरखास्त करो कर दिया। मोहम्मद असलम कित्तूर इनकी जानिब से 2 मुसल्ले हैं। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर मौजूद, यूसुफ तंबोली, वो अपनी पूरी पॉकेट मनी ईदी जी हो है, वो पूरी इंशाल्लाह मरकज के लिए देने के लिए तैयार है। ये कहते हैं जज्बात। हजरत अभी तरगीब दे रहे हैं, और तो इससे बढ़ के और क्या चीज हो सकती है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हिम्मत कर लीजिए, ये मरकज के बनने की आखिरी मजलिस हो जाए जिसमें पूरे तकाजे पूरे हो जाए इंशाअल्लाह। हिम्मत कर लीजिए इंशाअल्लाह। हिम्मतनगर से एक बहन है, हो सकता है। मैं यहाँ पे हमारे अलाउद्दीन तामोली साहब है, कितने मुसल्ले लेकर आए हैं आप? पर्ची दिए, कितने मुसल्ले बोले? 2 मुसल्ले। मैं ये कहूंगा कि आप अपने रबकवी बन्नटी से कम 50 मुसल्ले हो सकते हैं। वहां पे मिले हैं, ऐसे इलाका है माशाल्लाह वहां पे, और ऐसे अफराद हैं, कर सकते हैं। मैं अभी एक एक के नाम लेके बुलाऊंगा इंशाल्लाह। आप कर सकते हैं, हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह 50 मुसल्ले उस इलाके से, रबकवी बन्नटी और रामपुर से हो सकते हैं। इरादा आप करो, मेहनत कदम बढ़ाओ, इंशाल्लाह अल्लाह आसान कर देगा। इरादा कर लेंगे इंशाल्लाह। तय्यब। हमारे दोस्त है मोहम्मद उस्मान साहब, उनकी तरफ से 5 मुसल्ले आए हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। हमारी एक बहन है फातिमा सिस्टर, हिम्मतनगर से, मुस्तकिल जब से काम स्टार्ट हुआ है एक मुसल्ला बेचती रहती हैं। आज फिर उन्होंने ऑनलाइन 1 मुसल्ला दिया है। अल्लाह उनकी सारी जायज तमन्ना पूरा यहाँ देखिए कितनी। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने हज़रत मौलाना की इस मरकज़ के खातिर दिल खोल कर ताउन किया
औरतों ने अपने मेहर की रकम दे दी, बच्चों ने अपने पॉकेट मनी दे दी, बल्कि बाज़ बच्चों ने तो आइंदा जो ईद आने वाली है तो ईदी की जो पॉकेट मनी आएगी वो देने का भी इरादा किया। लिहाजा हम में से कोई भी शख्स ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए जिसका 1 रुपया जो हज़रत मौलाना के इस काम के अंदर न लगे, वरना कल क़यामत के दिन जो पूछ होगी कि एक बंदा उम्मत की फ़िक्र के खातिर खड़ा हुआ था और आपसे मदद मांग रहा था, ताउन मांग रहा था, आपने क्या किया। तो लिहाजा हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दावत बरकातुहू आलिया के इस मरकज़ का जो एस्टिमेट अमाउंट है वो तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए है। लिहाजा एक उमूमी चंदे की ज़रूरत है और एक उमूमी जो है ताउन की ज़रूरत है। तो जिस तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है वो खुद तो ताउन करे और इस मेरे वीडियो को आगे शेयर कर दे ताकि वो भी हज़रत मौलाना के इस काम के अंदर शरीक हो जाए। हज़रत मौलाना का जो मंशा है वो तो यही है, हज़रत ने फरमाया कि मुझे 4,500 ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मुझे 15-15 हज़ार रुपये दे। 4,500 ऐसे लोग जो मुझे 15-15 हज़ार रुपये दे। तो पहली मंशा तो ये है कि अगर आप 15,000 रुपये दे सकते हैं तो ज़रूर हज़रत मौलाना की मंशा के मुताबिक अमल करते हुए 15,000 रुपये दे, और अगर नहीं दे सकते 15,000 तो 10,000 दे, 5,000 दे। देखो, जब अल्लाह के दीन के खातिर कोई चीज़ मांगी जाए तो उतना देना चाहिए कि देते वक्त दिल को ऐसा हो कि मैंने कुछ दिया है, मेरा कुछ लगा है, बोझ लगना चाहिए, तो वो असल में दिया हुआ है। तो हज़रत मौलाना के इस काम के अंदर हर एक को अपना हिस्सा ज़रूर लगाना चाहिए। तो जो 15,000 दे सकते हो 15,000 दे, वरना 10,000 दे, वरना 5,000 दे, वरना 1,000 दे। लेकिन अगर आपको ऐसा कि मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे पास ताकत नहीं है, तो मैं आपको एक मशवरा देता हूं कि वली रहमानी के मॉडल को फॉलो करें। वली रहमानी ने अपने 10 करोड़ रुपए के लिए एक कहा था कि मुझे 10 लाख लोग 100-100 रुपये दे। तो हज़रत मौलाना का जो मिशन है उसके लिए अल्लाह के शुक्र से 2.5 करोड़ के करीब जो ताउन हो चुका है। अब जो बाकी है उसके लिए अगर 4 लाख आदमी भी अगर 100-100 रुपये डालेंगे तो हज़रत मौलाना का मिशन जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। लिहाजा हज़रत मौलाना के मिशन के लिए 100-100 रुपये तो हर एक आदमी को डालना चाहिए। 100-100 रुपये के हिसाब से देखो, एक बूंद बूंद मिलके एक तालाब बन जाता है, एक समंदर बन जाता है, और एक ज़र्रा ज़र्रा मिलके जो है पहाड़ बन जाता है। वली रहमानी ने ज़र्रा ज़र्रा इकट्ठा करके पहाड़ बना दिया है। उसी तरीके से हज़रत मौलाना के इस तरीके से मदद कर सकते हैं। वली रहमानी के मॉडल को फॉलो कर सकते हैं कि हम में से 4 लाख आदमी 100-100 रुपये हज़रत मौलाना के अकाउंट में डालें। अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर जो शो हो रहा है और मुकम्मल तफसील भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, वहाँ पर जाकर आप हज़रत मौलाना की मदद कर सकते हैं, आपका ताउन कर सकते हैं, आपकी इमदाद कर सकते हैं। और हज़रत मौलाना जो बहुत बड़े काम को लेकर चल रहे हैं उसके अंदर हम अपनी उंगली को कटा कर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो खुद भी अमल करें, दूसरों को भी शेयर करें। अस्सलाम।